नमस्कार एंड गुड इवनिंग। सो जैसा मैंने बताया था, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्लाइट बैक होम। एयरपोर्ट पे हूँ, तो थोड़ा आपको हो सकता है बैकग्राउंड से कुछ साउंड आए, सो अपॉलॉजीज फॉर दैट। बट आई थिंक इट शुड बी स्टिल प्रीटी क्लियर। हम बात करेंगे अगले आने वाले हफ्ते पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पे हमें क्या लेवल्स देखने को मिलेंगे। Um, देखिए, primarily it depends on what really happens in the Strait of Hormuz. Not the Strait of Hormuz, but in West Asia, right? Strait of Hormuz is one big factor in it, okay? क्योंकि अभी जो थोड़ा escalation जो मुझे देखने को मिला है, वो primarily Strait of Hormuz related ही है। Again, और उस पर भी बैक एंड फोर्थ है, सो दैट इज समथिंग विच वील हैव टू कीप वॉचिंग आउट फॉर। तो अभी कुछ रिपोर्ट्स मैंने देखी अल जजीरा पे, where they have kind of said that a lot of activity has increased. But again, conflict जितना भी बढ़े उससे उतना फर्क नहीं पड़ता जब तक there is a uh, again till there is a complete blockage on the Strait of Hormuz as such. Okay, जो कि अभी फिलहाल है, बट क्वाइट फ्रैंकली अभी ऑयल शूट अप नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ दैट। ओके, because I guess everybody has a feeling that this is a temporary phase, and it is again some kind of muscle flexing that both US and Iran are trying to do, especially on the back of Ayatollah Khomeini's last rites being performed, and a lot of rhetoric coming out of there. Okay, so of course that is going to be something which will keep lingering on US's mind. But yeah, we'll have to see as to what really kind of happens from there on. Okay. So चलिए हम let us just quickly get on to Nifty, Bank Nifty and Sensex charts and see what the levels are looking like, and what levels that we can kind of expect. जब हम निफ्टी के 5 मिनट चार्ट को पूरे हफ्ते में देखते हैं, सो वी आर लुकिंग एट इट फ्रॉम 6th ऑनवर्ड्स। ओके, तो क्लियरली हमें ये जो 2 दिन यहाँ पे बेसिकली दिस इज वेयर वॉर काइंड ऑफ अगेन रीइग्नाइटेड, राइट? और इस दिन हमने गैप डाउन ओपन किया एंड देन वी केम डाउन स्टेट टू 23,800, जो हमारा एक डिस्कस लेवल था फ्रॉम अ लोअर रेंज स्टैंड पॉइंट। ओके, और उसके बाद हमने वापस इमीडिएटली ट्रेस बैक कर लिया है टू द 24,200 लेवल। ओके, सो ऑफ कोर्स विद द वीकेंड अराउंड और वीकेंड पे जो एस्केलेशन हुआ है उस पर मुझे तो यही लगता है कि वी वुड काइंड ऑफ बी within this zone only. Okay, we'll kind of trade within this zone, maybe 100 points down or 50, 100 points up, and then we kind of uh, operate within this zone with an average of about, let's say, somewhere in the range of 24,000, there or thereabouts, right? Give or take 100 points up or down. Okay, so something like this is where we are mostly going to be there. At times we will go towards 24,200 and come down towards 24,800. That's the base feeling that I have, and that is something which I have kind of mentioned from earlier on, especially because we have not seen any major flare up on the oil or on the gold side as well. Okay, so that is where we are. Let us take a quick look at open interest as well. So, देखिए, when we look at open interest, what we realize is, आप देखिए फ्राइडे को क्या हुआ। फ्राइडे को ओवरऑल पीसीआर वेंट अप फ्रॉम टू 1.3। ओके, मतलब लोअर साइड पे यहाँ पे पुट्स काफ़ी ऐड हुए हैं। ओके, एंड वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो करंट जोन ±25 के एरिया में जो पीसीआर है, दैट इज ओनली 1.13। ओके, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि लोअर साइड पे बहुत पुट्स ऐड हुए हैं compared to calls overall, okay, और especially outside of this range, okay. अगर हम near term की बात करें for the next 2 days, what open interest is effectively telling us that market is definitely going to have a strong resistance at 24,500. Okay, market is not taking too much into account at the current juncture. Okay, लेकिन अगर हम सिर्फ यहाँ की बात करते हैं 24,200 की, okay, सो डेफिनेटली इस लेवल पे आप देखिए तो पुट इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल। ओके, बट ये सिनेरियो जो है वीकेंड के कारण हमें देखने को जरूर मिल सकता है कि यहाँ से पुट
अनवाइंडिंग काफ़ी जल्दी हो फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर, बिकॉज जब 2 जुलाई 2 दिन बाद 14 जुलाई की बात कर रहे हैं, ओके। और नीचे की तरफ आप देखें तो 24,000 पे सिग्निफिकेंट लेवल पे फिर हमें ओवाई दिख रहा है ऑन द पुट साइड, ओके। बहुत ज़्यादा इंडिकेशन तो मुझे रेंज बाउंड मार्केट का ही दिख रहा है कल के लिए, ओके। बट या वील हैव टू सी एज टू हाउ मार्केट बिहेव्स टुमारो व्हेन इट ओपन्स। So coming back to Nifty on the 15-minute chart, if we look at it and say as to what are the key levels that we need to be looking for, okay. So देखिए, yeah. So I think we have the key levels in front of us, okay. As I've been saying, हम जिस करेक्ट लेवल पे हैं 24,200, ये हम इसको होल्ड लेके चलते हैं, बट माई फीलिंग इज दैट वी कम स्लाइटली डाउन फ्रॉम हियर, ओके। बट फ्रॉम द करंट लेवल्स हम R1 की बात करें 24,350, R2 24,600 एंड R3 इज 24,850, ओके। और अगर हम नीचे की बात करेंगे तो आई वुड टेक 24,100 एज सपोर्ट 1, 24,000 as support 2, and this range of 23,900 to 23,800 है सपोर्ट पे, ठीक है। और इसका मेन रीजन जो मुझे इस रेंज लेने का है, वो अगर हम नीचे की तरफ आते हैं और तेजी से आते हैं, लूजिंग 300 पॉइंट्स एंड लूजिंग अनदर 100 पॉइंट्स इज नॉट गोना बी बिग इशू और अ बिग मिस्टेक। वो ड्राइव करके मार्केट वहाँ हमें ले जाएगा। क्यों? आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही चीज़ हुई थी, वी गॉट ड्रैग्ड तो 24,900 तक हम सीधे नीचे आए और उसके बाद वी काइंड ऑफ ड्रैग्ड ऑफ, राइट। तो ये हमें अक्सर देखने को मिलता है कि अगर हम बहुत तेजी से गिरेंगे तो डेफिनेटली हम नीचे की तरफ थोड़ा सा मोमेंटम हमें कैरी करके ले जाए। बट मुझे अभी फिलहाल तो जितना न्यूज़ इनपुट है उससे तो नहीं लग रहा कि कोई बहुत सिग्निफिकेंट ड्राइव डाउन आना चाहिए। बट या वील हैव टू वॉच आउट फॉर न्यूज़ फ्लो एंड व्हाट एक्टिविटीज हैपन इन वेस्ट एशिया बिफोर द मार्केट ओपन्स टुमारो। सो थोड़ा सा हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पर भी आप अगर हम पिछले पूरे हफ्ते को देखते हैं तो वही ब्रेकडाउन जो हमें आया था वो वेंसडे को आया, गैप डाउन एंड देन काइंड ऑफ ब्रोक डाउन, फिर रिकवर करके हम एक हेल्दी रेंज में वापस आ चुके हैं। इफेक्टिवली ऑलमोस्ट फ्लैट ही हमने क्लोज किया है लास्ट वीक। निफ्टी पर भी अगर हम पूरे लास्ट वीक की बात करेंगे तो वी हैव ऑलमोस्ट क्लोज फ्लैट, राइट, क्योंकि ये हमारा फ्राइडे क्लोज है 3 जुलाई, ओके। और हमारा मंडे जो जो इस फ्राइडे का क्लोज है दैट इज हार्डली मूव मच, राइट। सो मुझे नहीं लगता मार्केट इज टेकिंग टू मच ऑफ लोड ऑन what's happening in West Asia, but yeah, we'll have to see for it and then see as to what really happens out of that, right? अगर हम बैंक निफ्टी पे आगे के लेवल्स की बात करें तो लेट्स मूव ऑन टू द 15-minute चार्ट एंड करंट एरिया इज राइट इन बिटवीन हियर समवेयर हियर, ओके। तो हमारा R1 जो है वो है 58,300 पे, R2 जो है वो 58,700 एंड R3 इज 59,300। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट हमारा 57,850 है, second support is 57,500 and the support 3 is 56,800 to 57,000. So that's the level for Bank Nifty. Moving on to Sensex, और सेंसेक्स पे भी हमें एग्जैक्टली रेंज बाउंड स्टोरी ही दिखती है जैसे हमें निफ्टी पे के 5 मिनट पे भी देखने को मिली, बैंक निफ्टी के 5 मिनट पे भी देखने को मिली, ओके। सो इफ वी गो बैक टू सेंसेक्स ऑन द 5 मिनट चार्ट, यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है बैंड की वो थोड़ी ज़्यादा है, ओके, कंपेयर टू व्हाट वी सॉ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ओके। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट आप देखें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक एक टाइटर जोन में रहा और थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंडिंग रहा, ओके। So this is in general a good sign. The only issue is the volumes are relatively okay, और सेंसेक्स में हम देखते हैं कि थोड़ा वॉल्यूम साइड में हमें रिडक्शन ज़्यादा दिखा है एज कम्पेयर टू निफ्टी फॉर एग्जांपल, राइट। तो फ्राइडे को थोड़ा इम्पैक्ट रहता है वॉल्यूम डाउन होने का। anyway, अगर हम बैंक सेंसेक्स पे बात करें आगे के लेवल्स की तो देखिए हमारा बेसिकली आई थिंक दिस इज गुड, या।
सो हम जिस एरिया में है वो 77,500 के काफ़ी नज़दीक है। ओके, तो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हमने बात करी हुई है, अगर हम लॉन्गर टर्म पे देखें तो 78,400 है, R2 is 79,300 एंड R3 is 79,900। ओके, हम यहाँ पे ज़रूर एक 79,600 की लेवल की बात कर सकते हैं, बट हमें इस लेवल पे पुराने टाइम पे बहुत डेटा पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं, इसलिए आई एम नॉट काइंड ऑफ गिविंग 200 पॉइंट अपार्ट लेवल ऑन सेंसेक्स, और इतना नज़दीक में यूजुअली सेंसेक्स पे नहीं देखता हूँ। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमारा सपोर्ट 1 जो है वो है जोन 76,600 टू 76,850, सपोर्ट 2 इज 76,200 एंड सपोर्ट 3 इज 75,400 टू 75,600। सो जैसे मैंने कहा, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो आई एम ट्राइंग टू कीप दी वीडियो शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, बट डेफिनेटली कल के लिए थोड़ा केयरफुल रहें, बिकॉज मार्केट इज ओपनिंग ओवर द आफ्टर द वीकेंड ब्रेक एंड डेवलपमेंट्स इन वेस्ट एशिया डेफिनेटली गोइंग टू बी अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर एवरीवन। ओके, ये किसी भी तरह से हम प्राइसिंग अभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि मार्केट्स हैव बीन क्लोज, और फ्राइडे के बाद से थोड़ा जो भी डेवलपमेंट्स वहाँ पे हुए हैं उसके लिए हमें कोई भी इंडिया का डेटा पॉइंट डायरेक्टली नहीं मिला है। ओके, इंटरनेशनल डेटा पॉइंट्स would be there, but again I would still kind of have observed that Indian markets have decoupled from global markets to a great extent, especially when opening and trading is concerned in the short term. So definitely वो एक चीज़ है जिसको हमें ध्यान में रख के चलना चाहिए। कल सुबह के न्यूज़ फ्लो का ध्यान रखें, गिफ्ट निफ्टी को ज़रूर देखें, and basically based on that create a view and take your positions or take your decisions on your investments accordingly. कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजंस सिर्फ मेरे वीडियो के बेसिस पे ना लें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करें। जैसे इन्वेस्ट्यूज भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, एंड वी ऑल्सो काइंड ऑफ एडवाइज द क्लाइंट्स ऑन दैट बेसिस इन टर्म्स ऑफ व्हाट देयर रिस्क एपेटाइट इज, और उनके लिए कितना रिस्क अप्रोप्रिएट है, नॉट जस्ट हाउ मच रिस्क दे वांट टू टेक। सो इन चीज़ का ध्यान रखते हुए ही अपनी पोजीशंस लें, और सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आई वुड सर्कल बैक अगेन टुमारो, मे बी I'll add some more details once I'm back in office tomorrow morning. And till then, keep watching the video, like our video if you liked it, subscribe to our channel, and keep subscribe to our channel. And if you're not already, please do click on all notifications so that you are updated कि हमारा जब भी नया वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत मालूम पड़ जाए, और हमारा इसी तरह हौसला बढ़ाते रहें। keep subscribing and spreading the word on our channel so that हमारी भी रीच बढ़े, और we also keep getting motivated as we kind of go on. So again apologies, आज आपको शायद बैकग्राउंड में म्यूजिक की भी आवाज़ आई हो, so थोड़ा आज के लिए bear with us. Tomorrow we should be back with our regular setup. So that's it for tonight. Thank you for watching the video. Good night.